السلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری پیاری بہنوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے. کوئی سنائے گا؟ جی آج آپ کے سوال جو اب بھی ذرا ہو رہے ہیں، لکھا ہوا کوئی آ رہا ہے جس کو زبانی یاد ہے وہ بھی سنا دیں. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جی ترجمہ میں سناتی ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور دعا قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. بہت ہی بہترین دعا ہے. اس میں آپ علم کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے. آپ کی صحت، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی اولاد، آپ کا مال. رزق تو ہم صرف سوچتے ہیں کھانے پینے کی چیز رزق ہوتا ہے نا. تو رزق کی جو ڈیفینیشن ہے بہت وسیع ہے. اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اور عمل جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو. یہ اسکالرس جو ہیں گئے ہوئے تھے، خاص کر یاسر قاضی طواف میں دعا کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹس بھی گئے ہوں گے، تو ان کے ساتھ کوئی اور اسکالرس بھی تھا. تو کون سی دعا مانگے؟ تو انہوں نے یہ والی دعا ریکمینڈ کی تھی طواف کے چکروں میں، کہ اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. جی اب آ گیا ہے آپ کا کوسچن آنسر کا سیشن. ٹھیک ہے، جی. نماز اسلام کا کیا ہے؟ اہم رکن ہے. اہم رکن. ٹھیک. اہم رکن ہے. جی جی. نماز کب فرض ہوئی تھی؟ کس موقع پر؟ معراج کے موقع. معراج کے موقع پر. جی. اور معراج سے پہلے کتنی رکعت پڑھی جاتی تھی؟ 50. نہیں نہیں نہیں، مکہ میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی تھی ہجرت سے پہلے؟ وہ تو تحفہ 50 کا ملا. موسیٰ علیہ السلام آپ کو واپس بھیجتے رہے تو آپ نے 5 نمازیں کم کرائی تھیں جاتے چکر لگاتے لگاتے. لیکن اس سے پہلے کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی تھی مکہ میں؟ 2 رکعت. 2 رکعت پڑھی جاتی تھی. ٹھیک ہے جی. علیہ السلام نے کہا تھا نا میری قوم تو 2 بھی رکعت نہیں پڑھتی ہے، آپ کی کیسے پڑھے گی؟ بالکل آپ کم کرائیں. ٹھیک ہے. تو 5 وقت کی نماز پڑھنے سے کیا معاف ہو جاتے ہیں؟ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کبائر سے، بڑے بڑے گناہوں سے ہم نے خود بچنا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ انجانے میں ایزا انسان جو ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو کبیرہ گناہوں سے ہم نے بچنا ہے. کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سچے دل سے توبہ کرنا، صرف توبہ، استغفار کرنا، صرف اپنے توبہ. نفس پہ کنٹرول کرنے نفس پہ کنٹرول، تقویٰ کرنا. ہاں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کفارہ بھی دیا جاتا ہے. کفارہ نہ دے، جیسے غلام آزاد کرنا. غلام نہیں آزاد کر سکتے تو روزے رکھنے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ ایکسپیشن ہوتا ہے جو دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. نماز گناہوں کو کیا کرتی ہے؟ دھو ڈالتی ہے، ٹھنڈا کرتی ہے. آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو قرار کر؟ نماز. ٹھیک ہے. اور مسجد میں آنے والے نمازی کو اللہ تعالیٰ کے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کون ہوتے ہیں؟ مہمان. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، محبوب بندے، مہمان ہوتے ہیں اور ملاقاتی ہوتے ہیں. سمجھے، نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو نماز آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اللہ سے باتیں کرنا. جی. اب نماز کی اہمیت کے اوپر کچھ بتائیں، کوئی حدیث سنائیں. نماز مومن کی معراج ہے. وہ فضیلت آ جائے گی، اہمیت میں آئے گی کہ اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کے اوپر کیا گناہ ہوگا، انجام کیا ہوگا. امپورٹنس. جب آپ وہ والی بات کریں تو وہ میں جب پوچھوں گی فضیلت کیا ہے تو فضیلت میں بتائیں گی. اگر نماز نہ پڑھے تو نماز ہاں جی، نماز نہ پڑھے، نماز کی اہمیت کیا ہے؟
कितनी ये है कि कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ा उसका घर कब्रिस्तान से भी बदतर है। अच्छा, काफिर और की तरह। इसके साथ और जो नमाज ये नहीं पढ़ता उसका अहल और हयात और उसका धन दौलत, उसकी सारी दौलत छीन लिया जाए, असर की वो नमाज के हाँ। लिए हदीस आई हुई है, ये आपने अच्छा बताया। लेकिन असर की जी। हदीस, असर के वक्त आपने कहा था मेरी जगह यहाँ कोई अकामा दे और मैं जाऊं और जो नहीं आए उनके घरों को जाके ना इस तरह करूं, तो इसमें जला देने बोला जी था। नहीं आप क्यों भूल गए हैं? दिखावे की नमाज क्या होती है? शिरक होती है। शिरक होती है, और उसका अंजाम किसके साथ है? 4 बड़े करेक्टर्स का नाम आया है। नहीं, कारून, हारून, फिरौन, हामान और अबी बिन खल्फ के साथ उनका अंजाम होगा। जी जी, और इसकी नमाज की अहमियत में एक और हदीस होगी, इस्लाम और कुफर के दरमियान जी नमाज क्या है? नमाज है इल्म, हाँ, नमाज फर्ज है ज्यादा इल्म। फासिल जो है नमाज है। जी जी। बच्चा कितने साल का हो जाए तो उसको फिर नमाज ना पढ़े तो हल्की मार 10 साल का हो जाए। जी। सात और 7 साल। जी, सात और साल 7 साल को तो 10 साल का हो जाए, 7 साल में उसको आदत डाले, हाँ, 7 साल में आदत डाले, 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो फिर उसको डांट के हल्का सा मार के, यानी उसको फिर नमाज का पाबंद बनाओ ना, कि आदत हो जाए उसकी पक्की। नमाज से गफलत से क्या होता है? नमाज से गफलत करें तो ना है। नहीं होता, बरकत नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बुखारी की हदीस में कि जो शख्स कुरान याद करके बुला देता है, फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता है, इसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था। ये आपने मिराज के मौके पर देखा था। ठीक है। सुन्नत के खिलाफ की गई नमाज क्या कबूल होगी? जी हाँ होगी, क्योंकि उसके अपने फराइज अपने फर्ज है ना। कबूल हो जाएगी, लेकिन सुन्नत का वो नहीं मिलेगा, अजर नहीं मिलेगा। अजर नहीं मिलेगा। जी, और क़यामत के रोज हुकूकुल्लाह में सबसे पहले किसका हिसाब होगा? नमाज की। नमाज तो पहले इम्तिहान में हमने क्या करना है? बहरहाल हर तरह पूरा पास होना है। जी, इंशाल्लाह। गुस्ल कब वाजिब होता है? किन हालतों में होता है? 3 हालतें हैं ना गुस्ल। एक तो आपके पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, हैज एक है एक हैज, निफास और जनाबत। जनाब, गुड। हैज, निफास और जनाबत, 3 इजी जनाबत। अल्फाज हैं। जी जी, जनाबत के बाद जी, अगर देखें जनाबत हुई है, रमजान का महीना है और मियाँ बीवी उठे और उनके पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है, तो अगर गुस्ल लेते हैं तो खा नहीं सकेंगे, तो क्या करेंगे? पहले खाएंगे, पहले पहले खाएंगे, पहले सेहरी करेंगे। फिर गुस्ल। जी नमाज से पहले हाँ जी, इसी तरह इसी हालत में थे और उन्होंने अलार्म लगाया, रात को जो है ये पावर ऑफ हो गई और उनका क्लॉक जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। जब बिजली आई तो वो उनका अलार्म नहीं बोला और उनकी जब आंख खुली तो सूरज भी निकला हुआ था। अब वो क्या करेंगे? रोजा रखेंगे या रोजा तोड़ेंगे? रोजा रखेंगे। अब क्या करेंगे? अब तरतीब से बताएं, क्या पहले क्या करेंगे? उनकी नीयत थी तो इसलिए रोजा रख लेंगे। जी, गुस्ल पहले वो करके गुस्ल लेंगे, ठीक है, फिर नमाज कज़ा नमाज पढ़ेंगे और रोजे को कैरी ऑन करेंगे कि रात को उन्होंने इसकी नियत की थी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है आज सिस्टर नसरीन मौजूद हैं जो फिक़्ह का इल्म जानती हैं और ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अब हम सेशन शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नमाज जो हमने सलाह का भी अपना की है पूरी सीरीज, और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं जो क्लियर नहीं हुए तो आप लोग अपना हैंड रेस करें और फिर हम एक 1 बाय 1 स्टूडेंट्स का नाम लेंगे, तो आप जो है अपना सवाल नसरीन बाजी से कर सकती हैं ना। तो आप लोग रेडी हैं? जी। आपको पता है किस हैंड रेस किस तरह से करते हैं? चैट पे जाके चले इंशाल्लाह ताला। नसरीन बाजी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी
جو ہم جو نماز کے فرض ہیں، جو 4 فرض ہیں، تو اگر ہم جیسے رات کو اگر وضو کر کے سوئے ہیں، دا مڈل آف دا نائٹ ہم اٹھے ہیں ریسٹ روم یوز کرنے کے لیے، تو کیا ہم ان 4 فرض جو ہیں جیسے ہاتھ دھونا، منہ دھونا اور جو ہے مسح کرنا، پاؤں دھونا، تو ہم ان تمام اعضاء کو ایک ایک بار دھو سکتے ہیں اس وقت؟ کیونکہ ہم نیند سے اٹھے ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، تو پورا وضو کرنے کا سم ٹائم دل نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ایک بار دھو سکتے ہیں، ایک بار ہی جو ہے دھونا ہم کو آیا ہے، جو 3 بار ہم دھوتے ہیں یہ سنت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے، 3 سے زیادہ بار نہیں دھونا چاہیے۔ تو اب اگر آپ یہ تو رات کے وقت ہے، لیکن آپ کسی ایسی جگہ ہیں آپ کے پاس پانی ہی کم ہے، اس وقت آپ جو تھوڑا سا پانی اس کو اسپرے بوٹل لے کے بس اپنے ہاتھوں کو، بازوؤں کو، چہرے کو، جو وضو کے پارٹ کو آپ نے ویٹ کرنا ہے، تو بس ایک بار سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اب ہم لیتے ہیں سسٹر صوبیہ کو۔ سسٹر صوبیہ، آپ کی ٹرن ہے۔ جی نسرین، مجھے پوچھنا تھا کہ وطر کی جو دعا ہے جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے بتایا تھا اس دن کہ ہم لوگ منہ پہ جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں پھیرتے اس کے بعد جب دعا پڑھ لیتے ہیں۔ جی جی، تو آپ نے دعا پڑھی اور پھر اللہ اکبر کر کے آپ سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ مجھے تو اسی طرح سکھایا گیا ہے۔ اگر رکوع کے بعد آپ نے دعا پڑھی ہے تو اللہ اکبر جی، کہہ کے سجدے میں جائیں گے، اگر آپ ہے نے رکوع سے پہلے پڑھی ہے تو پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دعا ہے نا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اس کے بعد آپ جی، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہدنی آمین فیمن آمین ہدیت کہتے ہیں۔ انکا یک میرے پاس ابھی لکھا ہوا ہے نہیں ہے تو زبانی پڑھتے ہوئے مشکل ہو جاتی ہے۔ تبارک ربنا وتعالی جو آخری 2-3 الفاظ ہیں اس کو صرف سننا، اس پہ آمین نہیں کہنی ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، پہلے جس میں دعا آ رہی ہے اس میں آمین آمین آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ مہدنی فیمن ہدیت آمین کہنا جی، ہے۔ جہاں ہر ہوگا فکرے کے بعد، ہر فکرے کے بعد اللہم آمین کہنا ہاں اہدنی جی فیمن بالکل۔ ہدیت۔ اب اچھا، آفنی فیمن عافیت آپ نے آمین آفیت کہنا ہے، وتولنی فیمن تولیت آپ نے تولیت۔ آمین کہنا ہے، وبارک فیما آتیت آپ نے آمین کہنا ہے، وقنی شر ما قضیت آمین، فإنک تقضی ولا یقضی علیک اس کے اوپر آپ نے خاموش انہ لا یذل من ولیت ویعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں جو مجھے سکھائی گئی ہے وہ ہے نستغفرک واتوب الیک، وہ ہاں جی وہ پڑھنا بھی ہے کہ کہہ نہیں سکتے پڑھنا؟ ہیں، ہاں وہ بھی کہہ سکتے جی ہیں۔ وہ جمع کرے استغفرک و اتوب جی الیک، ہاں، آپ وہ بھی وہ کر اصل میں عادت پڑی ہوئی ہے نستغفرک باعث پڑھنے کی۔ صیغے میں بھی، جی ہاں جی جی ٹھیک ہے، استغفرک جزاک اللہ خیرن واتوب کثیرہ۔ الیک، اور آپ نے جی منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرنا، بس سیدھا اللہ اکبر کر سیدھا کے کر سجدے میں چلے دینا۔ جانا۔ رخسانہ جزاک اللہ۔ شیخ آپ کا سوال؟ جی اشراق کا مجھے صحیح ٹائم کا مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا لیٹ سے ہو جاتا ہے، تو مجھے تھوڑا کنفرم کرنا تھا کہ صحیح ٹائم کون سا ہوتا ہے، یہ ٹائم دیکھ کے نماز اگر کہنا ہو۔ یہ نماز ایک ہی، اس نماز کے 3 نام آ جاتے ہیں، اشراق بھی آتا ہے، چاشت بھی آتا ہے، اور صلاۃ الضحیٰ بھی آتا ہے۔ اگر آپ جاگ رہی ہیں فجر کے بعد سورج اپ ہو جاتا ہے تو اس کے 15 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، یعنی وہ اوپر چلا جائے، زمین ایسے نہ لگا ہونا کہ اس وقت جب سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے درمیان، سورج تھوڑا سا زمین سے اپ ہو جائے تو اس وقت آپ پڑھتی ہیں تو وہ آ جاتا ہے اشراق، آئی تھنک اشراق کا ٹائم۔ اور جی اس کے گھنٹے 2 بعد جیسے کوئی سو جاتا ہے اٹھتا ہے تو اس کا چاشت کا ہوتا ہے، لیکن زور سے جو پڑھتے ہیں تو وہ ضحیٰ کا ٹائم ہو جاتا ہے سورج۔ نسرین جی وہ تو یہ میں نے تو یہی سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ضحیٰ علیحدہ نماز ہے، نہیں نفل ہی ہے، ان کے ٹائم ڈفرینٹ ٹائم کی وجہ سے ان کے نام آ گئے ہیں اس طرح۔ نہیں چاشت کا ویسے تو وہی ہے، زوال نماز سے نفل ایک ہی ہے، پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں نا، 4 نفل زوال۔ پڑھ سکتے ہیں یا کتنے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ بھی ہیں، آئی تھنک فتح مکہ کے دن ام ہانی کے گھر آپ نے آئی تھنک 6 یا 8 بھی پڑھے ہیں اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 سنت۔ تو نہیں پڑھ سکتے نا، اشراق اور نہیں چاشت 7 تو نہیں پڑھ سکتے نا۔ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، دیکھا جتنے آپ نفل کریں کہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جب فرائض پورے کر لیتا ہے یعنی فرض نمازیں، اس کے بعد وہ نفل سے میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو اب نفل سجدوں سے تو ہم اللہ کے اور قریب جاتے ہیں نا۔ ربیہ بن کعب جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے وضو کا پانی، تو آپ نے ایک بار کہا تھا مانگ ربیہ کیا مانگتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا ہمیں
रसूल वसल्लम मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या जवाब दिया था कि फिर सजदों की कसरत कर कि मैं तेरे लिए अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर सकूं। इसी तरह इब्ने उमर के बारे में आता, उन्होंने कोई ख्वाब देखी थी कोई आग की तरफ, तो उन्होंने सुनाया था, तो आपने कहा था इब्ने उमर तुम सजूद की कसरत करो कि मैं अल्लाह ताला के सामने तुम्हें बचा सकूं। तो सजूद की कसरत फर्ज नमाज के बाद नवाफिल से होगी ना। तो अगर आप जाग रही हैं, आप पहले पढ़ लेती हैं जो अशराक के हैं, उसके घंटे बाद आप दोबारा घर से बाहर जा रही हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, आप तैयार हुई, आपने वजू किया, आप फिर 2 नफल पढ़ के जा रही हैं, तो आपके टाइम के मुताबिक वो हो जाएंगे। फिर आप घर आती हैं, आपका दिल अगर करता है, अमूमन तो नहीं होता, लेकिन फिर आप करती हैं तो वो आपके वो दुहा के हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है बंदे पे। सो एक पढ़ना काफी नहीं है, तीनों टाइम अलग अलग पढ़ सकते हैं? तीनों टाइम, हाँ जी, तीनों टाइम जिस वक्त आपको सहूलत लगे आप पढ़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं यूजुअली अगर कोई तीनों भी पढ़ रहा है जी, अगर कोई तीनों भी पढ़ रहा है तो हम अपने अमाल नामे में नेकियों का इजाफा कर रहा है ना। अच्छा, ओके। तो जैसे इशराक भी पढ़ ली, फिर थोड़ी देर बाद वो चाश भी पढ़ ली, फिर दुआ भी पढ़ ली। हाँ जी, वो आपकी मर्जी है। जी जी, आप वजू में रहना चाह रहे हैं। अब इसके बाद पारिश आपका क्या सवाल है? जी बाजी ये पूछना था कि तरावी की नमाज है ना, ये इनका नियत नफिलों का होता है कि सुन्नत मौक़िदा? हमने पहले भी, हमारी पहली क्लास जो थी मैंने बताया था, नमाज के लिए मुंह से बोलकर नियत जो होती है वो नहीं कही जाती, आपके दिल के इरादे का नाम जो होता है वो नियत होता है। और जो तरावी है ये हाईली रिकमेंडेड है, सुन्नत के दर्जे पे है। सुन्नत भी इस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा रमजान नहीं पढ़ाई, आपने 3 दिन पढ़ाई थी जी। नफल सुन्नत उसमें आ जाती, लेकिन इसका रिवॉर्ड इसके रमजान के महीने में सेल लगी हुई है, आप अपने अमल नामे में नेकियों का इजाफा कर रही हैं, तो जितने मर्जी पढ़े, तो आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि ये मैं क्या पढ़ रही हूँ। आपने तरावी का वजू किया, आप पहले तरावी के लिए खड़ी हो गई, अल्लाह को पता है कि आप तरावी पढ़ रहे हैं। बाजी सलातुल तौबा, सलातुल हाजत और नफिलों का और क्या नाम है, यानी कि सलातुल शुक्राने की भी पढ़ सकते हैं? जी, शुक्राने के लिए आता है कि आप लोग अगर वजू में नहीं भी, आपको कोई खुशी की बात सुनिए तो आप फौरन जैसे कुरान का सजदा करते हैं ना, तलावत का सजदा, इस तरह आप शुक्र का सजदा बगैर वजू के भी कर सकते हैं। अच्छा, सलातुल हाजात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बहुत ज्यादा साबित है कि जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आती तो आप 2 नफल पढ़ के सलातुल हाजात पढ़ा करते थे। तो सजदा शुक्र किसी भी नेमत के हासिल होने पर होता है। इसमें अबू बकरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसी खबर आती जिससे आप खुश होते तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। तो सलातुल हाजात के बाद कोई मखसूस दुआ है या इस्तिखारा है? नहीं, इस्तिखारा तो अलग नमाज है, इस्तिखारे की हाजत की नमाज, इसके लिए हाजत की दुआ भी है, हम आपको इसमें ग्रुप में आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, ओके। नमाज नबवी में है? अर्शिल अज़ीम वाली चीज नहीं है। नमाज नबवी में है? तेरी वजह से छोड़ के जा रही हूँ, घर 2 ढूंढ भी नमाज नबवी में है इसकी दुआ? होगी, जरूर होगी, नहीं तो हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। अच्छा, तौबा की नमाज कहते हैं कोई भी गुनाह हो जाए, इसके लिए मैं बताती हूँ, हजरत अली से रिवायत है कि मैं जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता, इस पर अमल करता, इससे अल्लाह ताला जितना चाहता मुझे फायदा पहुंचाता। और जब मैं किसी साहबी रसूल से कोई हदीस सुनता तो इससे कसम लेता कि वो जब वो कसम खाता कि वाकई ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तुम्हें इस पर ईमान ले आता और अमल करता। ये हदीस मुझसे अबू बकर सदीक ने बयान की है कि उन्होंने बिल्कुल सच कहा। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है कि कोई आदमी जब गुनाह करता है फिर वजू करके 2 या 4 रकत नमाज पढ़ता है और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला इसे जरूर माफ कर देता है। फिर रसूलुल्लाह ने ये आयत तलावत बनाई, वो लोग जिनसे कोई फौश काम हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने आप पर जुल्म कर बैठते हैं तो उन्हें फौरन अल्लाह ताला याद आ जाता है और इससे वो अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सके। और वो लोग जानबूझकर अपने किए पर यानी गुनाहों पर इसरार नहीं करते। ये आले इमरान की आयत नंबर 135। यानी जब भी आपको कोई गलती हो गई तो वज़ू किया, नमाज पढ़ी, तो इस तरह कर सकते हैं। और चाश के लिए 4 रकत नमाज पढ़ना भी, कम से कम 4 भी पढ़ सकते हैं, ज्यादा पढ़ना चाहे तो उसकी मर्जी है। और
इस्तिहा और किसी, अच्छा जी अब अल्लाह अच्छा, एक औरत मुझे सवाल सितारा और करना है जी कि असर से जैसे फर्ज असर के बाद कोई भी नफल नहीं पढ़ सकते ना, असर की नमाज के बाद, जी जी मैं तो आपको असर बताती हूँ। से असर की नमाज से पहले हम नफल पढ़ सकते हैं, जो कुछ अगर कज़ा हो गई है नमाज जी पहले पढ़ के फिर असर की नमाज अदा करें? बिल्कुल, आपको पता है कज़ा नमाज का तरीका भी ये है कि जो अगली नमाज है उससे पहले आप कज़ा पहले की नमाज, यानी जैसे आप किसी से कोई उधार लेते हैं तो पहला खाता अपना क्लियर करते हैं ना, तो ऐसे ही आपने पहले कज़ा करनी है, फिर आपने फर्ज नमाज पढ़नी है। और इससे पहले नफल भी चाहे तो आप नफल भी पढ़ सकते हैं। अगर जोर के 4 सुन्नत रह गए थे तो आप असर से पहले 4 सुन्नत भी पढ़ सकते हैं, और 2 रह गए थे 2 भी पढ़ सकती हैं। और असर के बाद है तो नहीं है, लेकिन इसमें आप हाजत के नफल भी पढ़ सकती हैं, आप इस्तिहारे के नफल भी पढ़ सकती हैं असर के बाद। इसके अलावा अगर आप घर से असर पढ़ के मस्जिद गई हैं तो मस्जिद जाके तहियतुल मस्जिद के जो वजू तहियतुल मस्जिद के होते हैं वो भी नफल आप नफल पढ़ सकते हैं। इवन कह रहे कोई बंदा मस्जिद से निकल के चला गया, फिर दोबारा आता है मगरिब से पहले पहले, वो दोबारा भी तहियतुल मस्जिद के 2 नफल पढ़ सकता है। अच्छा, हम जुम्मे की अच्छा नमाज में जाते हैं जैसे, तब भी हर जुम्मे की नमाज में मस्जिद में जाके तो तहियतुल मस्जिद का पढ़ना होता है नफल जी या जी हाँ नमाज? जी, हाँ जुम्मे वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, एक आदमी आया आके बैठ गया, आपने खुतबे के दरमियान उसको कहा उठो और हाथ की उंगलियों से इशारा किया कि 2 पढ़ो। तो तहियतुल मस्जिद के 2 पढ़ने चाहिए। और जो मस्जिद के 2 नफल है, इसके साथ आप सुन्नत किसी भी नमाज को कंबाइन भी कर सकती हैं, यानी वजू के नफल भी इसके साथ आप नियत में कह सकती हैं कि मेरे वजू के तहियतुल वजू और तहियतुल मस्जिद 2 में इकट्ठे पढ़ रही हूँ। अच्छा। जी सही। अच्छा दूसरा, और मस्जिद सुनने में जैसे हम फर्ज ए, पढ़ते ए, हैं, 2 रकात होती है ना फर्ज, हाँ जुम्मे की मतलब नमाज में जी मस्जिद में जो पढ़ते हैं, हाँ तो हमें तो 4 रकात फर्ज नमाज पढ़नी होती है ना, तो जी। वो उसके साथ ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं या अलग नहीं से 4 नहीं रकात वो नहीं, वो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जुम्मे वाले दिन जो आप खुतबा सुनते हैं ना, जुम्मे का जी, खुतबा आपकी नमाज को 2 रकात पे ले आता है। अगर उसके अच्छा, बाद आप सुन्नत भी नहीं पढ़ते ना, आपको नहीं टाइम, कुछ लोग निकल जाते हैं, हालांकि 2 पहले 2 बाद में सही हदीस से साबित है कि जुम्मे की नमाज से 2 पहले पढ़े आप और 2 बाद में सुन्नत पढ़े, और 2 फर्ज पढ़ेंगे आप इमाम के साथ। और जो आपने खुतबा सुना ना खामोशी से बैठ के, वही आपके सारे जो 4 फर्ज होते हैं ना वो 2 पे आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा, तो ये 4 मस्जिद सुनते घर में सुनते पढ़ेंगी तो सही। 4 पढ़ेंगी। नहीं तो जो अगर अगर मस्जिद में गए हैं तो मस्जिद में पहले जाके 4 सुनते पढ़ेंगे कि पहले 2 नफल पढ़ेगा तहियतुल 2 वजू नफल पढ़े और का। फिर 2 भी पढ़ सकती हैं, और एक हदीस से 4 भी आए हैं कि 4 सुन्नत पढ़े। सही है। तो और मैं बाद अपना में जो अमल बताऊं, मैं 2 ही पढ़ती हूँ, 2 पहले 2 बाद में। अच्छा ठीक है, तो घर में 4 एक पढ़ेंगे ना? घर में तो हाँ आप पूरी जोर की तरह नमाज पढ़ेंगे ना। सही है। घर और में जोर की नमाज है, मस्जिद में इमाम के पीछे जी खुतबा जी सुन ठीक है। रही हैं, आप पहुंच गई, खुतबा आपने थोड़ा सुना, लेट पहुंची, तब भी इमाम की इत्तबा करते हुए आप 2 फर्ज ही पढ़ेंगी। सही है। और बाद में 2 सुनते हैं और 2 नफल भी पढ़ जी सकते हैं मस्जिद में ही। हाँ जी ठीक है। तस्रीन, ठीक मेरे है। लिए मेरा एक सवाल है आपके लिए। जी बताइए। तहज्जुद के साथ आप फजर की 2 रकात सुन्नत भी पढ़ सकते हैं या नहीं? नहीं, वो तो सुन्नत जो होते हैं ना अपने टाइम वो पे तो होती है बाद ना, में। अजान के बाद होती है। नमाज अच्छा सुन्नत का जो वक्त है ना वो अजान के बाद, फजर की अजान के अच्छा बाद है। ठीक। अच्छा अच्छा नसरीन जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा ना बेटा जो है वो जोर की और असर की जमात करा देता है वो, लेकिन वो फर्ज ही पढ़ता है। तो मैं बाज बात ऐसे होता है कि मैं उसी वक्त वजू करके निकलती हूँ तो भी वो नीचे आ जाता है कि भी पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जॉब करता है तो वो फिर ना मेरे वो जो सुनते हैं और वजू के नफल जो है ना वो मैं बाज बात नहीं पढ़ सकती, तो वो मैं फिर बाद में पढ़ा करूँ? अब हाँ जी, पता आप उसमें? बाद में पढ़ सकती हैं जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एक मैंने अरबों में देखा है, बल्कि अभी गई थी वहां पे तो मगरिब की अजान के साथ ही 2 रकात नफिल पढ़े जाते हैं। जमात के साथ या अपने अपने? नहीं, अकेले अकेले सारी औरतें खड़ी हो जाती हैं, तो वो अरबी सुन्नत औरतें, सुन्नत पढ़ती है या नफल पढ़ती है? मगरिब की अजान के साथ ही, नमाज हाँ से वो तो पहले। ISG की हर मस्जिद में, मैं मगरिब के बाद का हाँ समय, वो तो नहीं आपको नहीं पता पहले। है ISG की हर मस्जिद में मगरिब के बाद इतना टाइम देते हैं कि आप 2 नफल पढ़ लें। नहीं, ये तो मैंने वहाँ खाने काबा में और दोनों मस्जिद नबी में, दोनों में देखा है कि नहीं सारी यहाँ भी अरबी होता और है, ह्यूस्टन में भी हाँ होता
हाँ ये तो वो मेरे वो जी, वो पढ़ किस पढ़ लिए सकते हैं, मतलब अगर वो टाइम मिला तो आप 2 नफल पढ़ सकते हैं। वो उस वजू के या किस चीज के? वो वजू के भी कर सकती हैं, और आपको पता है हरम में तो तहियतुल मस्जिद नहीं है, वहां तो तहियतुल मस्जिद तवाफ ही होता है अल्लाह ताला के घर में। लेकिन अगर आप नफल पढ़ रही हैं अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए, तो आप नफलों से क्या होता है, बंदा अल्लाह ताला के और करीब होता है। सही सही। जी। ओके नसरिमा नफलों जी, में तो फिर अवाबीन के नफल भी होते हैं ना, मगरिब की नमाज के बाद आप नफल पढ़ते हैं, वो भी होते हैं उसमें ना? उलमा का इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं कि अवाबीन जो सुबह की नहीं, चाश इशराक दुआ उसमें आ जाते हैं, कुछ कहते हैं कि 6 नफल है मगरिब के बाद। जी जी होते हैं। जी, तो इसमें और दूसरा मगरिब की तस्बीह, सलवा तस्बीह भी होती है, सलवा तस्बीह, उसमें तीसरा कलमा जो उसमें भी पढ़ते ना हैं। जो सलातुत तस्बीह है, जितनी भी जी रवायात आई हैं, वो जो शबरात के बारे में मेरा, अगर आपने यूट्यूब पे सुना हो, जो मैंने लेक्चर छोटी सी वीडियो बनाई थी, जितनी भी हदीस हैं वो ज़ईफ हैं। लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं जब किसी एक अमल, एक चीज के बारे में इतनी ज्यादा ज़ईफ हदीस इकट्ठी हो जाए, तो वो काम जो होता है ना, वो हदीस हसन के दर्जे पे चली जाती है। तो इस तरह अब उल्मा के दरमियान इख्तिलाफ है, इसको हम मना नहीं करते, जो पढ़ रहे हैं हम उनको कुछ नहीं कहते, जो नहीं पढ़ रहे वो अपनी दलील देते हैं। तो अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल, साहबा किराम के अमल से नहीं वो कहते हैं कि साबित, एक मुहद्दिस हैं उनके अमल से कहते हैं कि ये साबित है, और अब्दुल्ला बिन मुबारक के भी आता है, वो भी कहते हैं। तो अब ये कि इसमें दो राहें, अगर कोई पढ़ता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं पढ़ता तो वो अपने एविडेंस देता है। सही है, गुनाह तो नहीं है ना, मतलब आप नहीं नहीं कोई नफल में गुनाह नहीं। रोजाना की इबादतें आप बहुत जितनी करें आप अल्लाह के आगे सजदा, जी वही उसमें शामिल हो गया। जी जी अच्छा ये नसरिमा जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कसर की नमाज के बारे में, जी कि कसर की नमाज हम ट्रैवलिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमने जोहर की नमाज घर पे पढ़ के गए पूरी कंप्लीट नमाज, और हम उसके बाद ट्रैवल के लिए निकल गए, तो क्या हम उस जोहर के साथ असर भी पढ़ सकते हैं? क्योंकि अभी हमने ट्रैवल शुरू नहीं किया, लेकिन हम जोहर के बाद ट्रैवल पढ़ सकते हैं। अगर जी, अगर आपको पता है कि आगे चल के आपको जगह नहीं मिल रही, वजू का इंतजाम ही नहीं है, और खासकर आप एयरपोर्ट पे जा रही हैं, जाते ही आप जो है उस पे चली जाएंगी अपने चेक इन पे और अपना वो कर रही होंगी, तो उतने में आपका असर का टाइम डिले हो सकता है, तो आप घर से 2 इकट्ठी भी कर सकती हैं कंबाइन, यानी जोर के टाइम निकलने पे से पहले जोर के साथ जोर असर के पढ़ टाइम सकते हैं जी। लेकिन अगर आपको पता है कि टाइम बहुत लंबा है और आपके पास वजू की भी सहूलतें हैं, आपने सॉक्स पहन ली हैं, बाकी वजू आप एयरपोर्ट रेस्ट एरिया आप जा रही हैं, रेस्ट एरिया भी आते हैं ना, आप वजू कर सकती हैं, आप गाड़ी पे जा रही हैं, आप जो है नमाज भी गाड़ी में रखी, आप रुक के वहां पढ़ सकती हैं, तो फिर बेहतर है कि उसको टाइम पे पढ़े। लेकिन वही है कि हर बंदा अपनी उज़र को जानता है ना, तो उसके मुताबिक वो करेगा। असर की नमाज सूरज इसी सिलसिले में एक और पहले क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं मैं पूछना चाहूंगी कि हम जब कसर में 2 नमाजों को मिला के पढ़ सकते हैं, तो सफर के अलावा हम किसी और सिचुएशन में भी इस तरह से कर सकते हैं? हाँ जी जी, किसी की सर्जरी हुई है और वो जो नमाज तो बैठ के ही पढ़ रहा है, क्योंकि अब वो खासकर मैं अपनी नी रिप्लेसमेंट मेरी हुई थी ना, तो आपने रोजा भी नहीं रखा सिजादा? तयम्मुम करके तो मैंने लेट के भी पढ़ी और 2 कंबाइन, क्योंकि वो दवाइयां ऐसी देती हैं जिससे आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, उसमें कपड़े आप ऑर्डर 2 कर कर रही थी यमुना सकते के, उसको बोल दिया ना नसरीन को, बेटा सारे तो कपड़े इसका मुझे मतलब आप कि सवाल हम अगर हमने अगर बीमार हैं, बीमारी की हालत में, उस सूरत में भी हम जो है कसर नमाज पढ़ 2 नमाजों को मिला के पढ़ सकते हैं। वही मैं अपनी बीमारी का ही आपको बताया, इसी तरह कोई बीमार है और उसने ऐसी दवाई लेनी जिससे नींद का गलबा हो जाएगा, तो वो भी कसर भी कर सकता है, बहुत ज्यादा अगर उसको वीकनेस हो रही है, और कंबाइन भी कर सकता है। अच्छा, और इसी बस इसी सिलसिले का एक और आखिरी क्वेश्चन है कि अगर हम जैसे घर से कहीं जा रहे होते हैं, समटाइम कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, या हमें ऐसी फीलिंग हो रही होती है कि मतलब लोगों का गलबा हो, मतलब नॉन मुस्लिम्स की वजह से हम थोड़ा सा परेशान हो रहे होते हैं, डर होते हैं कि हम शायद अपनी नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, तो क्या उस सूरत में हम 2 नमाजों को साथ पढ़ सकते हैं घर पे आकर, या इस सूरत में हम नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं, वो घर में आके भी आप पढ़ सकती हैं, और दूसरी मैं बात बता दूं, आप अपनी गाड़ी में भी पढ़ सकती हैं। इसमें पहले ना जिन शेख से मैंने पढ़ा ना, जो शेख डॉक्टर साम रजब जो है,
انہوں نے کہا تھا کہ نہیں آپ نے آتا عقیم الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کرنی ہے، آپ نے کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو پچھلے سال سے آ رہا ہے اس کے لیے آیت کوٹ کی جاتی ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ سے ڈرو جتنی آپ کی استطاعت ہے. اور جب میں حج پہ جا رہی تھی تو شیخ رات جو ہے ابھی نا، تو یہ بھی پی ایچ ڈی آپ کو ہوتا ہے الازہر یونیورسٹی سے، تو ہم ان کے گروپ میں تھے، تو ہم لوگ اکٹھے ٹریول کر رہے تھے، یہاں سے ہم جرمنی کے لیے نکلے تھے. تو راستے میں انہوں نے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے ہی نمازیں پڑھی. تو ہمیں بھی آ کے کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، لیکن جہاز آلموسٹ خالی تھا. میں نے تو کھڑے ہو کے قیام کر کے پڑھا، لیکن انہوں نے بیٹھ کے پڑھی تھی، اور یہی آیت انہوں نے بھی کوٹ کی تھی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ. کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو قبلے کا بھی نہیں تعین ہو رہا نا، تو آپ کیونکہ آپ نے فرض نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کتنی ڈر رہی ہیں، اور اتنا ڈر رہی ہیں جتنی آپ کی استطاعت ہے، تو آپ اس کے مطابق پھر کریں گی. سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی جزاک ویسے اللہ. سپوز گاڑی میں پھر آپ گاڑی میں پھر آپ چلتی گاڑی میں بھی پڑھ سکتے. ویسے تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نفل پڑھتے تھے چلتی گاڑی میں. چلتی گاڑی کیا تھی؟ ان کی اونٹنی تھی، کہ آپ نفل قبلہ کی طرف اللہ اکبر کہتے، پھر اونٹنی جدھر جاتی آپ نفل ادا کرتے تھے. اب اس زمانے میں وہ تو اونٹنی کو کہیں بھی رکوا کے ظاہر فرض پڑھ لیتے تھے. تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جیسے اگر آپ اس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے تو پھر آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، کہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں جتنی استطاعت ہے. جی قبلے کی وہ نہیں ہے فرض جانا پتہ چلے تو وَقُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جی نسرین ایک مشرق اور مغرب سوال میں اللہ کروں کا آپ ہی سے. ہے پھر. جی ایک کوشچن نسرین نسرین مجھے پوچھنا نسرین تھا مجھے بھی کہ کرنا ہے. جی بتائیے. جی جب نسیم جیسے دورہ قرآن میں آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا آپ اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں کہ صرف آپ دورہ قرآن میں قرآن کا جو اگر دل میں ذکر آ ہے رہا ہے تو کر سکتی ہیں، سن بھی رہی ہیں تو اگر آپ کرتی ہیں تو اگر دل پہ خود بخود اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اللہ کے صفاتی نام آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا نسرین ایک چیز پوچھنا اچھا جی ایک سسٹرز سوال ہے، جس نے اللہ سوال کے نہیں نام کیا کا ابھی تک ذکر، وہ کریں. جی اللہ جی کے میں نام نے کا نہیں کیا، ذکر مجھے کرتے ہیں سوال نا، کرنا ہے نسرین. قلبی ذکر، اس کے بارے میں تھوڑا ڈیئر کہنا سسٹر، چاہیے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کویشچن اینڈ آنسرز کا سیشن ایک اور دن رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارا دورہ ایک قرآن کا چھوٹا سا ٹائم ہو کوشچن گیا ہے. ٹائم اوپر ہو گیا میرا ہے پاری، ہمارا. ایک چھوٹا سا ہے بالکل. آپ مجھے ایک کا جواب ہے نا، قلبی ذکر کے بارے میں تھوڑا بتائیں. قلبی ذکر وہ دل کے اندر سے جو آپ کے دل سے نکلتا ہے. قلبی ذکر ایک قلب ہوتا ہے، ایک زبان کا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قلبی ذکر یہ ہے کہ دل سے آپ کے اللہ تعالیٰ کا شکر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف آ رہی ہے. پھر زبان سے آپ بول کر بتاتی ہیں، پھر جب آپ اپنے باڈی کو یوز کرتی ہیں تو وہ آپ کا جوارے کا شکر ہو جاتا ہے. نسرین ایک سوال چھوٹا سا مجھے میرا چاہیے نا جواب دینا. آپ اسکرین ایسا کو کرتے ہیں شیئر نا، اسکرین. ٹائم جو ہے اوپر ہو میری گیا آواز ہمارے 4 منٹ اوپر چلے گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈیئر سسٹر ہم ایک اور دن کویشچن اینڈ آنسر سیشن رکھیں گے، اور ہمارا جو اب فرائیڈے کو ہمارا لاسٹ ہے. نیکسٹ ویک ہم پورے ویک ہم کسی بھی دن ایک دن ہم اپنی ٹیچر سے پوچھ لیں گے، جس دن ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو اس دن ہم ایک اپنا کویشچن آنسر سیشن رکھ لیں گے، جس میں آپ لوگ سب لوگ کویشچن کر لیجیے گا. ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو نسیمہ جی دعا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہم سبحانک اللہم اسٹارٹ و کریں گے. بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.